क्लीन एनर्जी का प्रोग्राम हम लोग बिहार में चला रहे हैं। एसएसपी चला रही है। इसका 15 महीना पूरा हुआ है। तो मिड टर्म इवोल्यूशन हमारा एक प्रोसेस है। इसमें हम लोग एक्सटर्नल एक एजेंसी है रीवर्जिंग वर्ल्ड, जिनके देवानंदन जी बैठे हुए हैं हम लोग के साथ। तो इनके सहयोग से हम लोग एक मूल्यांकन कर पाते हैं कि हमारा अभी तक का सफर कैसा रहा, क्या कमी है तो उसको कैसे ठीक करना है, या उस कमी को छोड़ देना है धीरे धीरे रिड्यूस करके, या फिर आगे बढ़ना है। तो क्या सजेशन है। एक रिसर्च एजेंसी के तौर पर हम लोग को ये बहुत शानदार फीडबैक मिलता है, जिससे हम अपने प्रोग्राम को और अच्छा बेहतर कर पाते हैं। इसी दरमियान में पालक सर तो उस प्लानिंग मीटिंग में भी थे, जब हम लोगों ने प्लान किया था कि सखी के साथ, सुपर सखी के साथ, ग्राहक के साथ, प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के साथ हम लोग बातचीत करेंगे, सप्लायर के साथ ही बातचीत करेंगे। तो सब कुछ होते होते लास्ट में इस बार, ऐसा पहले नहीं हुआ था इस तरह के विजिट में, लेकिन इस बार हम लोग गाँव खोज एक नया चीज सुन रहे हैं, और ये बहुत इम्पैक्ट डाल रहा है हम लोग के काम। तो देवानंदन जी को बहुत महसूस हुआ कि हम लोग जरूर इनको जो बनाए हैं उनसे हम बात करें। तो हम बनाए कि अमोद सर बनाए हैं और बताएंगे, और उसका जो कनेक्टिविटी है कैसे हमारे प्रोग्राम में उसका हम लोग यूज कर रहे हैं, पालक सर बेहतर बता सकते हैं। How can we integrate digital to make it strong, to make them future ready, what I would say. So to give you a bit of a context, हम लोग देख रहे हैं कि स्मार्टफोन का डिमांड काफी उठ के आ रहा है। सुपर सखी जिनसे भी हम लोग बात कर रहे हैं, given the fact that let's say under one super sakhi, let's say 20-25% of the sakhis would have a smartphone. With that caveat, let us also understand the situation, the ground reality, and then going forward, what should we do, and what has been the role of Gaon Khoj in the last 1 year in their lives. Why was the need of Gaon Khoj in the first place in their life? So all that let us discuss in those lines. So given that context, Amukji, what has been the experience? Why was there in your Gaon Khoj? And then also, if you can introduce the organization that you are representing. Exactly. Thank you, Devanjan, for that introduction. I think we are trying to discuss Jan 2022 December, but I would like to take you a couple of years back when we started Gaon Khoj, and the basic objective or the basic theme that we really built our organization was based on the tree concept. If you see our logo, we have a tree, right? And that tree indicates towards rural economic empowerment. I think that's the acronym that we are trying to follow, and the real essence of growth that we see in India is rural. Yeah, because as Gandhi said, no, I mean the real India is in the villages, and we truly believe it. And when we started in 2018, that was the philosophy that we wanted to um, reach out to the villages and empower the people there, especially the women folk, because that was a very untapped kind of potential that we felt really needed to be, because what we were seeing was the women in the villages were like the housekeepers, and they were just the support staff of their husbands in the farms. Okay, they were never really looked up as someone who had the entrepreneurial abilities, or someone who could reach out and do sales and marketing, right? It's got to do with culture as well. I mean, culturally we have been brought up that way, right? But our research and findings were saying that the women were managing their households, they're managing their children, they're managing their farms, and they were doing such a multitude of tasks that we said, no, I mean, if we give them this kind of avenue, they will do much better than the men. And that was really why we really wanted to get into that segment and look at empowering women as the rural women to market and to see if we can really create an empowerment model there. And that's basically the fundamental objective of
why we have built Gav Coach. And then once we reached there, the issues and problems were very easy for us to see that at merging that offline and online gap was pretty big. Yeah, it was just very difficult to really get people to even look at the maybe they knew how to call, but they didn't know how to use a smartphone. Exactly. Yeah, exactly. So the initial 1 year or so was more in terms of handholding them to be more aware, and that's exactly what we have mentioned in our slide, that digital gyan. I mean, getting them aware was very important. And then the kind of inbuilt fear that has come into the women based on their upbringing, getting that out was also very crucial. Yeah, a lot of them were some of the ladies had tremendous potential, but they were shy or they're suppressed or whatever. Yeah, but so getting those kind of trainings, and this is, I guess, SSP has done a fantastic job in that, in getting the women folk out of their houses and into the markets. So this is exactly where we really focused on trying to bridge that kind of a divide and creating that digital awareness. Possibly, I'm asking it from a point of view of business partners who are associated with SSP, who are trying to distribute and market their products through this particular distribution channel. That had it been led by men, would we be more effective in distributing our products, making it more a business sense, or women are making more business sense for us? Are we doing it only for the sake of empowering women, or is there a business sense inbuilt in it? It's a very interesting question, but I would like to answer in this way, that probably given the current scenario or the current cultural this thing that we are looking at, maybe initially we could have seen more movement with the men kind of an approach, with the men approach. But we will see as we move ahead in the coming years, the women-led approach will be much more wholesome. It will be much more wholesome. It will be much more integrated. And it will be much more, not just in terms of reaching or hitting goals. I think that's where the women are different from the men. Okay, men are more in terms of going for the goals. They are more outward oriented, whereas the women are more inward oriented. They look at the bigger picture much better. Okay. Yeah. Sorry. If you permit, I will add one point with my actual experience, based on my experience. It is like that the kind of products we are trying to support for the woman to promote. Most of the cases, apart from few machines, those are the household items which has been sold. For the women, we saw it much easier to do one way. That is my practical experience. How I am telling you, a woman can take it say sanitary napkin or baby care products, or kind of a what we are promoting, LED bulb kind of a solar or energy product. Woman simply can enter into any household without asking permissions, this that, because they that another one woman is there, they go to the kitchen directly. Whereas for the men, it is not possible. A man, whatever relation is there, he just cannot go up to the inside the house. He stop at the gate, he calls someone, he speaks. However, for the women, I have personally accompanied them. I saw without any knocking, without anything, they simply entered into the kitchen. Means they have that kind of access. Yes. And that's for the women for the taking it a much easier way, I will say on the term. One very interesting quote came up when we were doing this interviews with Sakhi the last week, is that महिलाएं जो है बातें करती है एक दूसरे से, अगर आधा घंटा भी हो तो गांव में एक बार एकजुट होकर बातें करेंगी, एंड दैट इज वेयर द स्प्रेड ऑफ वर्ड इज हैपनिंग. लेकिन पुरुष बात नहीं करते, अपने काम से काम मतलब रखते हैं, बाहर चले जाते हैं, अपने काम से वापस आ जाते हैं घर पे. आई थिंक these are the really insights we try to bring in this study also. See this WhatsApp group, what we are talking today, it is offline WhatsApp kind of a thing was actually happening in rural area, in the village. Today the problems which we are trying to solve possibly will be through digital ways. And can we then think of a digital Sakhi, digital Gaon vision at the end of this, let's say, third year of the project? And what we need to empower them? What are the resources? What are the tools that we need for them
to get empowered digitally. मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है महाराष्ट्र में गांव में, जब हम लोग शुरुआत किया था 2018 में विद एसएसपी गांव में, हम लोग को डिजिटाइजेशन दैट टाइम्स नॉट विद द डायरेक्टली ऐप बट मोर ऑफ ए डिजिटाइजेशन सिखा रहा था, स्मार्टफोन यूज कैसे करना है सिखा रहा था। ये सब जब कर रहा था हम लोग को डिस्कवर किया, हमारे जो सखीज है महाराष्ट्र में वो सब सखीज ऐसा ही था, अराउंड 20 to 30% ही जिसके पास मोबाइल वाज देयर। दैट वाज द सिचुएशन इन 2018-19 का इनिशियल स्टेज In Maharashtra. in Maharashtra. I'm talking about in Maharashtra. So when the lockdown came, actually it first 1 month was whole situation standstill, not able to move anywhere, how to connect, what is that these days. So SSP did a great job here, thanks to Patil sir. He tied up with a Samsung and with a very nominal EMI basis able to manage hundreds of handset. ये करना पड़ेगा हमको, बिहार में अभी ये करना पड़ेगा। हाँ, हम लोग ये उठ के आ रहा था। पूरा सखी को एकदम नॉमिनल ईएमआई में हम लोग हैंडसेट दे दिया और उसके साथ ये बिजनेस ऐसा चलाया जो उसको ईएमआई आ रहा था, वो टोटल बिजनेस महीने में जिसको कर रहा था उसको एक फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट हो रहा था, तो उसको पॉकेट से कुछ नहीं जा रहा था। गौतम जी, रजनी जी, ये उठ के आ रहा था ना पिछले हफ्ते जब हम बात कर रहे थे सखियों से कि अगर हम लोगों को बिना ब्याज के इजी ईएमआई से लिंक करे तो हम भी स्मार्टफोन खरीदेंगे, बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। रीजंस ऑफ इन महाराष्ट्र बिकॉज वो सेल जो कर रहा था उनको कुछ हार्डली 300-400 रुपया महीने में कट रहा था एंड उन्होंने सेल कर रहा था 3000-4000, मतलब अर्निंग आई एम टॉकिंग 3000, 4000, 5000 इवन इंक्लूडिंग 20,000। और पदार्थ जी मुझे बोलिए, एक मतलब वाइल्ड आइडिया आ रहा था, शायद स्टूपिड भी लगेगा, लेकिन क्या हम लोग सुपर सखी को स्मार्टफोन का माइक्रो डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं? जरूर बना सकता है। It's a wonderful idea. I think इससे बना सकता है। In fact, मैं आपको थोड़ा सा छोटा लेवल में बोल देता हूँ। ये मेरा विजिट में, ये जो लास्ट 8 days आई वाज इन विलेज, हम लोग तो ये सोच के आ गया, मतलब फिक्स करके आ गया जे हमारे पास गांव में क्या हो रहा है, गांव में किसी को मोबाइल को रिचार्ज करना है, उसके पास ऑप्शन क्या है, वो क्या करता है, कोई एक दुकान में जाता है और दुकान वाला को 50 रुपया 100 रुपया देता है, बोलता है मेरा नंबर ये है, मेरा रिचार्ज कर दो। हम लोग सोचा ये क्यों ना हमारा सखी गांव वाला को करे और वो अर्न करे, जो कमीशन दे रहा है जियो, जो कमीशन दे रहा है एयरटेल, तो दुकान वाला को कुछ तो कमीशन देता है। हम लोग क्यों ना ऐप में एक बटन ऐड कर देता है जिसमें मोबाइल नंबर डालेगा, अमाउंट डालेगा, रिचार्ज हो जाएगा, सखी वो अमाउंट इनकम करेगा ना जो गांव का कोई दुकान इनकम कर रहा है, क्योंकि सखी ने कनेक्ट कर रहा है और ये हर मंथ सखी को इनकम हो जाएगा फिक्स। ये हम कर दिया, अभी ये वीक में हम लोग जियो को मिलने वाला है जी, हमारे पास अच्छा स्कीम दे दो। मैं महाराष्ट्र में अभी 450 गांव ऑलरेडी एक्टिव है, 450 गांव में आपको कराता हूँ। तो वो फिर अगर करेंगे ना, सुपर सखी को अगर माइक्रो डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, आई थिंक दैट विल बी अ गुड वे टू गेट इनटू द विलेजेस। हम लोग डिजिटल गांव की तरफ जा सकते हैं धीरे धीरे, एंड देन शी कैन आल्सो हैव अ डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस पोर्टफोलियो, उनका भी बढ़ेगा। हाँ, पलाश जी, इफ यू कैन जो हमारे मोबाइल शॉप्स की जो हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं अभी महाराष्ट्र में, उसमें अगर मोबाइल शॉप्स को अगर हम लाते हैं ऑन बोर्ड और उनका और सुपर सखी का अगर ऐसा कुछ कंसोर्टियम या एसोसिएशन अगर बिल्ड कर सकें, देन आई थिंक इट मींस वो सुपर सखी को ज्यादा इन्वेस्ट भी ना करना पड़े, बट शी बिकम्स द इन्फ्लुएंसर टू सेल द मोबाइल्स इन द विलेज। इस तरीके से अगर वो कर सकें, and then the mobile wala shop hai, he becomes a distributor. But what I was seeing, the super sakhis who are making digital payments are increasing their business, right, or else they are getting stagnant, right. तो एक ट्रेनिंग मॉड्यूल हम लोगों को डालना पड़ेगा। अगेन एग्जांपल स्पेसिफिकली ऑन डिजिटल पेमेंट, अगेन एग्जांपल दे रहा हूँ। हम लोग कुछ महाराष्ट्र में सखी प्रीमियम लीग बोल के कुछ कंपटीशन के बेसिस में सखी लोगों को कुछ किया था सितंबर अक्टूबर महीने में। इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर हमारे पास 300 सखी था और उसको सखी प्रीमियम लीग बोल के चालू किया था एंड उसको कंपटीशन लगाया था। एंड जनरली जो नॉर्मली मंथली सेल्स होता है उस 40 डेज में 5 टाइम सेल हुआ था उनको। नाउ दैट वाज द केस, इन दैट केसेस में अराउंड 70 to 80% मनी केम ऑन कैश। अच्छा, नाउ SPL2 second edition we launched on 20th of January and we finished up 28th of February. You know what is the cash amount came? What? 0. Okay. The reason of SPL2 was made it that no money to be transferred into that SEOR account
in terms of a cash. Cash. You have to transfer into via any mode, either NEFT or you go to the bank and deposit, or you transfer to Google Pay. Whatever you do, you find out a solution. Yeah, but cash will not be considered for this competition. Exactly. Many of the women ask their friends to deposit, and they when it is under pressure, they make it. When it is under pressure, they make it, because sometimes initially it may feel it difficult, but the moment exactly what you told, we saw that the people who are able to do online transaction, they are able to do better sales. Exactly. It is the true fact. Because it shows that they are ready to innovate. They are ready to. And by this way, they learn a lot, and the moment they learn all these things, they are able to present to the customer in a much better way. Because I'll just tell you one example. Okay, बिहार में अभी तक हम लोग कोई बड़े मशीन्स बेच नहीं रहा है, अमाउंट आर स्मॉल. सिंस महाराष्ट्र में हम लोग बड़े मशीन्स बेच रहा था, पहले 2 ट्रिप लगना पड़ता था. एक ट्रिप था जहां पर जाके उसको कैश एंड डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके लेकर आना पड़ता था, दूसरा ट्रिप जाके सप्लाई होता था. अभी क्या हो रहा है, वो कैश नहीं है, ऑनलाइन ट्रांसफर करके दे दिया, तो 1 ट्रिप में हो जाता है. एंड दिस विलेजेस आई एम टॉकिंग अबाउट, सपोज आई हैड बीन दोस विलेजेस नाउ. नीलांगा डिस्ट्रिक्ट का लातूर से अराउंड 100 किलोमीटर इनसाइड. मतलब एक दिन में मैं 380 किलोमीटर ट्रैवल किया है, वन साइड ऑफ 150, वन साइड ऑफ 150 लाइक दिस. देन आई वेंट टू वासी लातूर से वो सम, इट इज लाइक दैट. सो आई एम टॉकिंग अबाउट 2 बार ट्रिप करना बहुत डिफिकल्ट है. ऑल दिस लॉजिस्टिकली डिजिटल विल बी सेविंग दोस थिंग्स. चेंज 2 तरीके से हो सकता है. एक तो आइदर नेसेसिटी और सेकंड इज कैलामिटी. ओके, हमने लास्ट ईयर में दोनों देखा है. ओके, कैलामिटी हैज क्रिएटेड नेसेसिटी. राइट. ओके, तो जो कैलामिटी आया है कोविड के इसमें, उसकी वजह से वो नेसेसिटी ऑटोमेटिकली बिल्ड हुआ है. एंड द एडेप्टेशन, जो अडॉप्शन किया है लोगों ने, स्पेशली द वुमेन, आई मीन इट्स बीन फेनोमेनल. आई मीन वी कुडंट इमेजिन ऑल 300 सखीज ऑन अ Zoom call. So that's extraordinary. And they are organizing it. They are completing the calls. They are conducting them. They are spreading out the words. They are getting more sakhis to join from other mobile phones, helping each other out to connect on the calls. That itself is such a phenomenal thing. Brilliant. मतलब जो डेवलपमेंट हो सकता था नेक्स्ट 3-4 साल में अबाउट दिस डिजिटल, लॉकडाउन हैज मेड दिस इन 6 मंथ्स. दैट प्रीएम्प्ट हो गया, एक्सेलरेट हो गया है. एक्सेलरेट हो गया है. एंड दे हैव अडॉप्टेड, दे वर ओपन टू अडॉप्ट इट. दैट इज द इंपॉर्टेंट. मैं गांव खोज ऐप में वापस जा रहा हूं. एंड देन पॉसिबली व्हेन इट वाज लॉन्च्ड, व्हाई वाज देयर अ नीड, क्यों चाहिए था गांव खोज ऐप इस इकोसिस्टम में, क्योंकि हम तो प्रोग्राम कर ही रहे थे. राइट. गांव खोज ऐप का जरूरत क्या था? अमोद जी आप. नहीं, मैं बोल दूंगा, बट आई एम रियली नॉट एबल टू टेल की जरूरत क्यों नहीं था. आई वाज I'm going to ask for जरूरत क्यों नहीं था. हाँ, या आई एम थिंकिंग ऑफ एन आंसर इन दैट वे कि वो क्यों, व्हाई इट इज नॉट नीडेड, एंड व्हाई वी आर कंसीडरिंग रूरल की नहीं, वो हमेशा ऑफलाइन ही करेंगे. ओके, सो इट वाज लाइक दिस थिंग कि नहीं, आई मीन this is a necessity. ये जरूरी है as we move ahead. Okay, that bridge between rural and urban is too big, and if we are to unite those two cultures, I think this becomes a very powerful. मैं रजनीश जी को थोड़ा प्रोवोक करता हूँ फिर. रजनीश जी आप बताइए कि गांव खोज ऐप का जरूरत था. मतलब आंख बंद कर लीजिए, आमोद जी नहीं बैठे हैं सामने, तो आप मुझे बताइए कि इसका जरूरत था क्या गांव खोज ऐप का, या फिर जैसे चल रहा था हमारा फेज 1 में वैसे ही चलता तो बेहतर ठीक है. हाँ, एग्जैक्टली. यस सर हम बताते हैं. देखिए, पहले नंबर तो हम लोग पिछला प्रोग्राम किए थे, तो वहाँ पे हमारा गांव खोज ऐप नहीं था. मतलब डिजिटल में किसी तरह का हम लोग काम नहीं कर रहे थे. लेकिन इस बार हम जब आए, ठीक है, हम लोग का जब कोरोना हुआ तो लोग क्या कर रहे थे कि कहीं एक दूसरा जगह नहीं जा रहे थे. मतलब जहाँ के थे वहीं रुका हुआ था. तो ये जो स्कीम आया, इसके बारे में हम लोग को पहले भी इंट्रोड्यूस किया गया पाला सर के द्वारा कि इस तरह का गांव खोज एक प्लेटफॉर्म हम लोग सखी को देंगे तो ये कैसा रहेगा. तो उस चीज को हम जब सखी को इंस्टॉल करवाए तो उसमें देखिए क्या क्या इसका बेनिफिट हुआ. पहला नंबर है कि बिहार का जो स्थिति है सर फाइनेंशियल में, तो सखी के पास अगर हम लोग अभी बता रहे हैं कि एक सखी का एक बास्केट ला के देंगे और उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट देंगे, ठीक है.
तो क्या होता है कि फाइनेंशियल स्तर से अगर देखते हैं तो उनके पास सारा प्रोडक्ट का रेंज नहीं रख पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे? क्योंकि उनके पास पैसा का कमी है। तो यहाँ पर अगर गांव खोज ऐप्स में हम सारा प्रोडक्ट उसको डिस्प्ले में दिखाएंगे तो एक फायदा होगा कि सभी को, कस्टमर को प्रोडक्ट दिखा के उससे वो ऑर्डर ले सकता है और बुक कर सकता है। पहला बेनिफिट ये हुआ। दूसरा बेनिफिट क्या है कि अगर एक कस्टमर के मोबाइल में, एक दूसरा को मोबाइल में वो डालेंगे तो क्या होगा कि कस्टमर का आउटरीच इनका बढ़ेगा। लेकिन आप दोनों गाँव चीजें खोज ऐप्स बताइए, हाँ, तो फिर हमको पूरा व्यू मिलेगा कि ये बेनिफिट होना चाहिए था, अभी हो रहा है कि नहीं। हाँ, तो शायद पूरा समझ में आएगा कि एजम्पशन था कि ये होगा, अभी ये हुआ कि नहीं। तो इसका जो अभी जो हमारा जो मतलब स्तर था वो इसमें हम लोग स्टार्टिंग किए थे, लगता है सितंबर में पाला सर इसका। राफली आई थिंक रफली सितंबर में किए थे। नहीं सितंबर नहीं, 15 नवंबर को ओपनिंग था। नहीं वो तो लॉन्च हुआ था, वो ऑफिशियली गौतम ऑफिशियली लॉन्च किया था, बट शुरुआत तो उसके पहले ही कर दिया था। वो एक ऑफिशियली सबको बुला के एक प्रोग्राम करके वो बनाया था। लेकिन आई थिंक रजनीश राइट है, ये सितंबर के समथिंग चालू कर दिया था। थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग दे रहा था, थोड़ा थोड़ा पीपल को लेकर आ रहा था, ऐसा ही शुरुआत हुआ था। आई थिंक राइट। तो इस स्तर में सर जो हम लोग इसका जो देख रहे थे कि जो अभी हमारा जो सिचुएशन था, उस सिचुएशन का जो हम लोग का जो जिस तरह से हम लोग सोचे थे कि उस तरह का हमारा फीडबैक मिले, लेकिन वो स्तर से नहीं, हमारे सखी को उस चीज को अडेप्ट नहीं कर पाए। कारण इसका 2-3 कारण है गांव खोज ऐप्स का। कि पहला नंबर तो ये उठ के आया, अभी मतलब फील्ड में बात की, हमारी जो ग्रास रूट की महिलाएं हैं, सखी है, तो पहला आपको निकल के आया कि अगर हमारा ये गांव खोज ऐप्स अगर सफल नहीं हो पाया है 25 या 25% रखिए इसको, तो सफल नहीं होने का मेन कारण है कि हमारे सखी के पास एंड्रॉयड फोन, स्मार्टफोन का कमी, पहला नंबर। दूसरा नंबर कि अगर हम उसको बूस्ट भी करते हैं, अगर पुशअप भी कर रहे हैं सखी को, तो निकल के आ रही है 5 सखी 6 सखी इस तरह से भी बोल रही है कि नहीं सर इस मोबाइल को हम खरीदेंगे और गांव खोज ऐप्स के माध्यम से हम बुक करेंगे। जैसा कि 1-2 सखी को बात करने से आपको भी इसका आंसर मिला। और ऐसी सखी हमारे पास है फील्ड में, ठीक है, उसको वो लोग भी इसके प्रति गांव खोज ऐप्स के माध्यम से वो भी मोटिवेट हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि गांव खोज ऐप्स के लिए हम लोग मोबाइल खरीदें। और ये रिजल्ट आपको आएगा, मतलब इस महीने, अगले महीने तक वो रिजल्ट भी निकल के आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सखी का जो मतलब इनकम है, ठीक है, वो बढ़ने लगा है और प्रोडक्ट का भी सेलिंग हुआ है, मतलब गाँव भी खुल गया, मार्केट भी खुल गया, तो इनका धीरे धीरे मोटिवेशन बढ़ेगा और इसमें ये आगे अच्छा करेंगे। हाँ, इनको कमी क्या है कि वहाँ पर ट्रेनिंग का, स्किल डेवलपमेंट का, वो सब लगातार हम लोग को फोर्स करना पड़ेगा। मेरा एक मानना है कि जिस परिस्थिति में हम लोग इसको शुरू किए और जिस मतलब कोविड परिस्थिति के अलावा जिस ज्योग्राफिकल एरिया में इसको कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग थोड़ा स्लो है, लेकिन हम मानते हैं कि सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए हम लोग भी यही बोल रहे हैं कि आज हमने इनिशिएट किया है, लोग जानते हैं गांव खोज ऐप के बारे में, अवेयरनेस किया है, कैंपेन किया है, लोग अभी बोल रहे हैं हाँ सुना है, गांव खोज ऐप के बारे में सुना है। हम लोग अगर 6 महीने पीछे जाएंगे वो भी नहीं था। तो आज पॉजिटिव क्या है, हम लोग को पॉजिटिव चीजें लेनी पड़ेगी कि गांव खोज ऐप के बारे में सुना है, बहुत सारे शक्तियों के पास अभी अपने स्मार्टफोन में गांव खोज ऐप डाउनलोडेड है। डाउनलोडेड है सर, अभी वो डाउनलोड दूसरे के मोबाइल में कर रही है, कर भी रहे हैं। नहीं जानता था, जिसके पास व्हाट्सएप मोबाइल नहीं था, एंड्रॉइड मोबाइल, वो दूसरे के मोबाइल में गांव खोज ऐप डाउनलोड कर रही है। अभी हमारा ये स्टेज तक पहुंच गया है, ये वो लोग दूसरा का मोबाइल, मतलब हमारा सखी का बात कर रहा हूँ, जो दूसरा का मोबाइल लेकर प्ले स्टोर में जाके गांव खोज लेकर उसको कर रहा है, ये बहुत बात है, दैट इज इम्प्रूवमेंट हुआ है, मतलब मैं जिस सिचुएशन में हुआ है यहाँ पर एक्चुअली बताना चाहता हूँ, ये मतलब सॉरी गौतम जी, रजनीश जी यहाँ पर है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये दोनों अनएक्सपेक्टेड टाइप ऑफ काम करके हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं किया। सही बात है, हम भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस बात को। ये बहुत ही बढ़िया काम किया है जी, रजनीश जी अपना तारीफ खुद एक्सेप्ट नहीं करिए। और देवांजन वही थे, मैं आपके पॉइंट पे आ रहा हूँ कि अगर वो मेन बेस्ड करते थे तो शायद प्रॉब्ली इतना पेनिट्रेशन नहीं हो पाता, इसलिए विमेन जो आपने बताना कि विमेन क्यों चीज किए थे, आई थिंक सो दिस काइंड ऑफ शुड गिव यू दिस थिंग कि because of the women they have been able to initiate these things faster जी। और ये चेंज फिर वे फॉरवर्ड जो दिमाग में आ रहा है, मैंने गौतम जी और रजनी जी के साथ शेयर भी किया है
नेक्स्ट हम लोगों को चाहिए थोड़ा फोकस्ड ट्रेनिंग, हाँ, कि कैसे गांव खोज ऐप को इस्तेमाल करना है, एंड देन अ बिट ऑफ अ क्लोज मॉनिटरिंग कि फर्स्ट एडॉप्शन, रिपीटेड यूज 5-6 साइकिल्स तक, शायद 7th-8th साइकिल से वो लोग खुद ब खुद चालू कर देंगे करना, लेकिन खुद मतलब अगर सुपर सखी जा रहे हैं, हाँ सुपर सखी अगर गांव में जा रहे हैं तो वो बता के देंगे कि ये दबाओ, इसके बाद ये आ रहा है, ये बटन है, कर करके 5-6 साइकिल तक हो जाएगा रिपीटेड यूज। 7th-8th साइकिल से मुझे लग रहा है इंडिपेंडेंटली ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट ही होएगा। राइट। एंड इसके साथ साथ जो चाहिए एक बेडरॉक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेस टू स्मार्टफोन, दैट इज इंपॉर्टेंट। इंटरनेट है कि नहीं, अगर नहीं है तो कैसे हम लोग देंगे इंटरनेट को। इनफैक्ट जो आपने इश्यूज बताया ना देवांजन की, स्मार्टफोन्स एंड इंटरनेट, ओके, तो स्मार्टफोन्स इज समथिंग, इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, लेकिन इंटरनेट जो है, ओके, तो व्हाट वी आर आल्सो प्लानिंग कमिंग अप इन द फ्यूचर इज द नेटिव ऐप, कि जो एक बार उन्होंने डाउनलोड कर लिया तो वो नेटिव हो जाएगा ऐप, ऑफलाइन ऐप हो जाएगा वो, ओके, सो दे कैन स्टिल गो एंड बुक देयर प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, जो भी है सेल्स कर सकते हैं। वंस दे गो ऑनलाइन, जहाँ पे भी उनको ऑनलाइन मिलेगा जाएंगे तो वो रजिस्टर सिस्टम में हो जाएगा। सो इस टाइप का हम डेफिनेटली प्लान कर रहे हैं, ताकि उनका कहीं भी कनेक्ट, इवन इफ दे आर नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट, they still have access to the marketplace. And then can we also think about, let's say those who have feature phones, USSD based menu कुछ option? Okay. हो सकता है क्या? Can be thought of. That, I mean, we can think of it. लेकिन again, I think moving ahead, we should probably look at the smartphone option rather than going at the feature phone level. नहीं, तो क्योंकि मुझे लगता है वो adaptability रहेगा लोगों में to move towards the smartphone rather than to the feature phone. Right. तो I think अगले रजनीश जी, गौतम जी, अगले 6 महीने का रोड मैप बहुत क्लियर है कि फोकस ऑन ट्रेनिंग गांव खोज ऐप के ऊपर, क्योंकि दिस इज द वे फॉरवर्ड। हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है डिजिटल एम्पावरमेंट इज द वे फॉरवर्ड, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? ट्रेनिंग पे फोकस, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस, ये दोनों अगर हो जाता है 7th और 8th मंथ से हम लोग एक स्पेसिफिक मॉड्यूल ऑन डिजिटल पेमेंट्स चालू करना पड़ेगा, एंड देन उसको फिर एक्सेलरेट करना पड़ेगा। ये एकदम पैकेज बन जाएगा तो मुझे लग रहा है 3rd ईयर तक एक वो डिजिटल गांव का विजन हम लोग करीब पहुंच पाएंगे। मिजोरी और आई थिंक विल बी वेरी सपोर्टिव अबाउट दिस। उनका मनी इफेक्टिव वे में यूज हो रहा है। और मुझे लगता है कि वो जीरो बैलेंस अकाउंट्स की वजह से lot of rural folk have created their accounts, तो उनके लिए डिजिटल एनेबलमेंट करना बहुत ही इजी मुझे लगता है मूविंग अहेड हो जाएगा as more and more people start creating those zero balance accounts जो है वो। The Trinity has already been created, Jan Dhan account, Aadhaar and exactly. तो हम लोग के पास वो सोशल कैपिटल है जिसके ऊपर हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। Exactly. तो इसका बेनिफिट लेके हम वी कैन डेफिनेटली, और अगेन इट्स जस्ट कि वो लोगों ने अडॉप्ट किया एंड इट्स फैंटास्टिक। आई मीन वी वर थिंकिंग कि 2018 में वी स्टार्टेड, वी सेड कि ओके 2022-23 में वी विल स्टार्ट सीइंग सम मूवमेंट हैपनिंग, कि लोग समझ रहे हैं। वी हैव बीन एबल टू प्रीएम्प्ट इट 2019-2020 itself. Of course, we were helped by the COVID. I mean, COVID के fringe benefits बोलेंगे हम, that we have been able to really create that kind of situation. But it's amazing that the village rural women able to pick up so fast. Extraordinary. I mean, you were amazed. How it is like that? Again, my practical experience of last 7 days. What we have done is that in the Gaon Khoj app, this is the first of its kind. We have given access to create its own website for the micro entrepreneurs. Means micro entrepreneurs will create their own websites. We have just given the access, and we have told like it's a web page. Definitely, it's not an individual URL, but it's a Gaon Khoj parallel web page one. But for it looks like exactly a website for micro entrepreneurs. We are not building their websites or web page. We have just given the password to them. They themselves are building, that is Sakhis are now able to build for the micro entrepreneurs. We understand what level they have picked up in last 6 months. I was really amazed in this trip
We have taught it by Zoom. We have taught it this, and last Monday, 15th, Amod ji also was with me at Osmanabad. He taught about in front of the people. He taught it, and 7 days I have accompanied to the people, and I amazed the picked up, and they are making a page. Which is the site. It's a surprise thing. So that's the thing. Sakis, can they have that interest? They have that basic minimum things. Bihar, we are facing challenge because handset is not there, but I believe they will have an equal amount of say level of understanding. That understanding and level of interest. मैं देख रहा हूँ कि motivation है, मोटिवेशन है, उसको हैंडसेट नहीं है बोल के थोड़ा सा अटक रहा है, मतलब उसको that is a bottleneck has created. ऐसा नहीं होगा कि रेजिस्टेंस है कि हमें नहीं जाना है, रेजिस्टेंस टू चेंज नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है. बिल्कुल. और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमने थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया है उनके एबिलिटीज को. तो नाउ मूविंग अहेड, हमारे फ्यूचर स्टेजेस में वी शुड बी लुकिंग एट 2 स्टेप्स अहेड रादर देन जस्ट 1 स्टेप. कि एक ही हम बेसिक लेवल ट्रेनिंग न करते हुए वी कैन लुक एट एडवांस ट्रेनिंग आल्सो. दे विल बी एबल टू पिक दैट अप probably much faster, so we can speed things up further. एकदम फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन समझने की कोशिश कर रहा हूँ पलाश जी और आमोद जी कि जी कोई सखी अगर ऑर्डर प्लेस करते हैं अपने ऐप से, where does it go, उसके पास कहाँ से जाता है, and then what is the flow of information, and then finally delivery. So what happens is that once these people place an order, at this moment it is coming via mail, and that mail goes to 3 places. One, it goes to the there is a logistics department for the CEO. It goes there. One is goes to that project head, means that project head, project coordinator, whatever, project manager, whatever you say, that they know ये मेरा टीम से कहाँ से क्या आ रहा है, and one mail goes to the गाँव खोज team. अच्छा. This is the 3 mail goes. We from there we have a program. We have a program from the mail directly transfer into a Excel format. But at this moment we are not using because our SEO logistics teams is a little confused. So what is happening from there, from whatever data comes, is via one point it's downloaded. And once it is downloaded, then logistics team see it that these are the things are there. They segregate it based on the say their territories. They divide which location who is there, and which stockist capacity it has to be delivered. That they do entirely in the backend, and then from there actually it is delivered. That these happened for the 3 things. Actually we have a 3 things of things. Information flows from the app. One is actually purchasing order placed by the Sakhis. This is one point. Second thing, villagers place demand. And third thing is that any villagers is downloading the app. All the 3 informations comes via app, via a program. It is a one button, one place chart. I'll just show you a screen share and show you one point. I'll show you one. मेरा screen खुला है, ऐप डाउनलोड किया तो कैसे तुरंत आ जाता है, वो दिखा तो आप लोग टेक्नोलॉजी. And then just one question before that, Palash, ki is this a cloud warehouse or there is a physical warehouse somewhere from where the dispatch is happening? For the dispatches we actually have in Maharashtra 3 physical warehouse. 3 physical warehouse. Wow, it's based on the logistics, like Osmanabad is one of the hub, Latur is one of the hub, Solapur is one of the hub. It's a physical hub warehouse is there, and that is from there it is distributed to the stockist, and from stockist it is distributed to the Sakhis. So roughly each stockist has a 15-16 Sakhis, and so we in Maharashtra it's from the warehouse it distributed to around 40 stockists, and 40 stockists is distributed to around 450 Sakhis villages we are operating, active villages. It's gone like that. Yes, sir. So like this, today's whoever has downloaded the app from Bihar, so what we are getting is that there is a time, there is a date, there is a time, who is the person has this, whose phone number is that, which then state, taluka, district क्या है उनको, और किसने कौन सा पर्सन ने डाउनलोड करा है, either Sakhi or block coordinator or XYZ, and then there is a code is what kind of a that person is. He is a normal person, businessman, blah blah blah. So at a stage we get it this kind of a report where for everything, for the
purchase order for the villagers demand for the app download. So this kind of a report comes. It's a very easy model. We have made it so that people are able to access it and get it. It's like that way. And is there also a way to track कि कितना sales गांव खोज ऐप से हुआ है from out of the total sales? Yes. जैसे एक सखी का कितना सेल्स, मान लीजिए 100 रुपए का सेल हुआ है, उसमें से कितना सेल गांव खोज ऐप से हुआ है? Yes. At the back end level, yes. Front end level पे अब तक at the Sakhi level we have to give them, but we are definitely planning so that every Sakhi can monitor her sales herself, and we can provide her insights on what she's selling more, where she can sell. So all that can that AI based things will keep coming. Fantastic. Marketing trends कैसे हैं, कहाँ सेल बढ़ रहा है, किस कौन से आइटम्स आ रहे हैं, where they can make more money. Thank you so much. Just 1 second I'm taking, one minute I'm taking to answer your call about that sales related. So this is a one kind of a things what our dispatch department maintain. It is like that the order number, then project manager under which is there, block under which block coordinator, which day it was booked by which Sakhi, village, taluka, district, then उनका नंबर, क्या ऑर्डर बुक किया है, कितना एडवांस दिया है. So this kind of a things इसको dispatch हुआ कि नहीं, this is the things which is also maintained by this logistics. This is more of a Maharashtra mein it is maintained because number is more here. In Bihar yet to start in this format, but more or less format is the same. So just for your information. Fantastic. I would like to add one more there, because the logistics department, this logistics team is using Google Maps at this point. But since the areas are very rural and very remote, Google probably does not have those points. So what our team is doing is we are capturing the coordinates, geolocations of every, and we are creating our own map. We are creating a map for sure, which will be superimposed on Google Maps. So when our logistics team moves around, they will be able to access that map. That's a map more or less we have made it where they are able to route planning, they are able to do by that. Correct. That's the things what we are doing. Correct. So it's not last mile map, it's a last meter village map. wise last mile delivery. So that is we'll call it last meter map, because it's that remote. It's that remote. Gav Khoj is developing. So just closing thoughts, because we are seeing that there are 3 aspects to last mile. Not only delivery, marketing, delivery, and sales. Yes, all three. And I think Gaon Khoj is addressing all the 3. Yes, as of now, exactly, and at least aiming to address that. Possibly we will flesh it out more in the coming days. But marketing bhi ho raha hai, delivery bhi ho raha hai, sales matlab the actual transaction of products and cash. Right. So I think fantastic, and thank you everyone for joining this call. It was great speaking to you. Pleasure. A lot of great insights. And Amodji, we will be in touch, I think, to get more insights on Gaon Khoj. Sure. Thank you. Thank you. तो देवांजन सर, हाँ बोलिए. Thank you Gautam ji. Thank you Rajनीश जी. थैंक यू सर, प्रमोद सर, पाला सर, सब लोगों को धन्यवाद. देवांजन सर को लगातार जुड़े रहने के लिए और ये रूरल एरिया में सब सखी सुपर सखी से लगातार बात करने के लिए, इतना क्या बहुमूल्य समय और बहुमूल्य चीजें निकाल के लाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. आज हम लोग इस तरह के लास्ट कॉल में है, इसका फिर हम लोग दूसरे तरह की बातचीत हो सकता है, पर ये इंटरव्यू या इनसाइट कैच करने का जो हम लोग ने शुरू किया था वो लास्ट में है. तो देवांजन सर, रीमर्जिंग वर्ल्ड को बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू, एंड आई विल पास इट ऑन टू माय टीम. मुझे नहीं लगता रजनीश जी और गौतम जी आपकी लीडरशिप के बिना ये रिमोटली हम लोग कर पाते. नॉर्मली हम लोग फील्ड पे जाते हैं और फिर डेटा कलेक्ट करते हैं, इनसाइट्स कलेक्ट करते हैं. इस बार जो पूरा ये रिसर्च हमने रिमोटली किया है, ये भी एक दिखाता है कि डिजिटल कितने इंपॉर्टेंट होता जा रहा है हमारे लिए. राजनीश जी वही बता रहा हूँ कि गांव का पीपल को यहाँ पर बैठ के उन्होंने आपने बहुत बड़ा इंटरव्यू करा के ऊपर सब सखियों का हमने इंटरव्यू किया. एक्सेलेंट जॉब. पाला सर एक चीज और देखे हैं कि जो हम लोग सुबह से सप्लायर से बात कर रहे थे, तो वो उनको ज्यादा प्रॉब्लम फेस हो रहा था, बस उनके उससे ज्यादा अच्छा से सखी और सुपर सखी जुड़ रही थी इस मीटिंग में. क्या देवांजन सर? हाँ बिल्कुल. आज हमको सिखाना पड़ा है कि जूम को कैसे इस्तेमाल करना है सप्लायर्स को, और सखी से हम और फ्रेंडली जुड़ कर ये सब बात कर सके. कोविड-19 लेकिन बहुत कुछ सिखा दिया सर. और एसएसपी से ये रिमोट कॉल का ये प्रोफेशनलिज्म सीखना चाहिए. मैं पिछले हफ्ते भी या उससे पहले हफ्ते
लातूर उस्मानाबाद इस रीजन में भी जूम कॉल से एग्री बिजनेस वैल्यू चेन समझने की कोशिश कर रहा था, बहुत सारे फार्मर्स को इंटरव्यू कर रहा था, वहां पे भी एकदम परफेक्ट जो हो रहा है। हमारा डेयरी वैल्यू चेन लक्ष्मी का जो मॉडल है सब कुछ उसमें रिसर्च कर रहे थे, तो वो भी बहुत आसानी से सीमलेसली हुआ। देवानंद सर जो जैसे अभी बोले ना डेयरी प्रोडक्ट, देखिए कुछ बिहार के लिए अगर डेयरी का कुछ हम लोग कर सकते हैं प्रोडक्ट में, तो उसका भी मतलब अच्छा मार्केट बन सकता है। देखना पड़ेगा। थैंक यू। ठीक है। ओके, आप सिर्फ आइडिया लाइए रजनीश जी, मॉडल बन जाएंगे। आप आइडिया अच्छे लाइए बस। एकदम को मैं बोल रहा था कि हमें सेक्टर पहचानना पड़ेगा। एनर्जी शायद उतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन न्यूट्रिशन, हेल्थ, हाइजीन, क्या क्या सेक्टर है जो गांव में चाहिए वो मैपिंग करना पड़ेगा, और वो फिर डिमांड क्रिएट करके वी विल हैव टू डिलीवर दिस। जी जी, स्किल रिलेटेड एजुकेशन, दैट इज आल्सो अनदर वन इम्पोर्टेंट एजुकेशन, यस, या स्किल रिलेटेड, या ओके, थैंक यू, ओके, थैंक यू, बाय बाय।